तेलंगाना मुखन्ना यानी रियासत तेलंगाना की असम्बली और कानून साज कौंसिल में आज रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने CAA, NPR और NRC के ख़िलाफ़ एक क़रारदाद पेश की और इस क़रारदाद पर दिन भर यानी आधे दिन में काफ़ी मुबाहिस हुए। उस मुबाहिस के दौरान KCR ने ऐलान किया कि वो रियासती अवाम के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। గత కొన్ని మాసాలుగా దేశంలో దేశ పౌరసత్వ సవరణ చట్టానికి సంబంధించి అసలు పౌరసత్వానికి సంబంధించి అనేకమైన చర్చోపచర్చలు వాదోపవాదాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి అధ్యక్ష. చాలా పరిణామాలు కూడా సంభవించినాయి. జాతీయంగా విత్ ఇన్ ద కంట్రీ కాదు సార్, అంతర్జాతీయంగా కూడా ఈవెన్ ఇంటర్నేషనల్ అసెంబ్లీ ఆల్సో ఈ విషయం మీద చర్చ చేస్తూ ఉన్నారు. ప్రపంచం అంతా కూడా భారతదేశం వైపు చూస్తూ కూడా ఉన్నది. ఇది ఒక విపత్కరమైనటువంటి విచిత్రమైనటువంటి పరిస్థితి. ఈ పరిస్థితులలో దేశంలో ఉండేటువంటి సెక్యులర్ వాదులు, ప్రజాస్వామ్యవాదులు, భారత రాజ్యాంగ లౌకిక తత్వం పట్ల సంపూర్ణమైన విశ్వాసం కలిగిన వాళ్ళు అందరూ కూడా తమ తమ పద్ధతులలో తమ తమ విధానాలు, నిరసనలు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు అధ్యక్ష. रियासती असम्बली में जारी मुबाहिस के दौरान कायद मजलिस मुखन्ना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने हुकूमत से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ने रियासत के अवाम के मफाद में आज जो क़रारदाद ऐवान असम्बली और कौंसिल में पेश की है, मजलिस उसकी मुकम्मल तायद करती है और हुकूमत से ख्वाहिश करती है कि वो उस पर स्टे लेके इक़दाम करे. Sir, I would urge the Telangana government, Sir, I would urge the Telangana government under the stewardship of Honorable KCR Saab to initiate urgent steps in this regard, as the House have listing operations are to commence from 1st of April 2020, sir. That is just 3 weeks' time, sir. Sir, we earnestly request CM Saab to immediately stay any work on the updation of NPR after consultation with other states, including the Kerala government. जिस तरीके से स्टे दी है वैसे ही आप भी स्टे दिए. मैं आपसे यह मुतालबा करता हूं, sir. We also urge the Telangana government to ensure that citizens residing in Telangana are protected from arbitrary and discriminatory measures such as NRC, sir. So we would request the state government to ensure that the conduct of state public service is in accordance with the provisions of Constitution of India and not contrary to them, sir. So we urge the Telangana government to ensure peace and social harmony in the state and to prevent any threat to public order as likely result NPR NRC, sir. Lastly, we urge the Telangana government to file a petition in the Supreme Court under Article 131 of Constitution of India questioning the enforcement of CAA 2019 and validity of rules framed under the Citizenship Amendment Act 2003 for conduct of NPR. The provisions under Article 131 permit the state to move against the Government of India on any question on which the existence of an extent of a legal right depend. In this case, the right pertain to the right to equality and freedom of religion enshrined under Article 14 and 25 in Part 3 of Constitution. Moreover, the CAA, our opinion, is not only ultra-virus specific constitutional provision but also violates the basic structure of Constitution. We earnestly hope and trust the Honorable Chief Minister Saab would respond to our specific request and demand and announce the measures to stay the NPR exercise and confine the first phase of census work to house listing operation and housing census, sir. We would extend our fullest cooperation to the Telangana government in its endeavor to oppose CAA, NPR, NRC, sir. मैं फिर से खत्म करते हुए KCR साहब का ममनून हो, मशकूर हो और रियासत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मेरे सदर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से मेरे पार्टी के MLAs, MLCs और पार्टी के कारकुन और रियासत के सारे मुसलमानों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं चीफ मिनिस्टर साहब कि ऐसे वक्त में जब हर किसी ने हमारा 70 बरस तक इस्तेमाल करने के बाद अब
अपना दामन हमसे छुड़ा रहे थे, वैसे वक्त में आपने हमारा हाथ थामा है। हमारा वादा है कि हम भी कभी आपके हाथ को नहीं छोड़ेंगे और हम आपके हाथ को थामे रखेंगे और आगे बढ़ेंगे, फिरका परस्तों से लड़ते रहेंगे और कभी भी इन फिरका परस्तों के सामने झुकेंगे नहीं, न डरेंगे न घबराएंगे। हम मुकाबला करेंगे इनका और अपना दस्तूरी हक जो है उसको हासिल करेंगे और अपनी जिद्दोजहद की लड़ाई और हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम हक परस्तों की आवाज है, हक की आवाज को कोई नहीं दबा सकता और कोई हमारी आवाज को नहीं दबा सकेगा। हम लड़ेंगे, जमहूरी जिद्दोजहद करेंगे, दस्तूर के दायरे में रहकर लड़कर अपने हुकूक को हासिल करेंगे। शुक्रिया चीफ मिनिस्टर साहब, ममनून मशकूर। शुक्रिया स्पीकर साहब कि आपने मुझे मौका दिया। शुक्रिया सर। ऐवान असम्बली में आज कांग्रेस मुखन्ना पार्टी के कायद मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने CAA, NPR और NRC पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा कि हुकूमत इस करारदाद पर खामोशी इख्तियार ना करे। कांग्रेस पार्टी हुकूमत के इस फैसले के साथ है। रियासत के अवाम के हक़ में हुकूमत और ख़ास तौर पर वज़ीर से हम खुसूसी ख्वाहिश करते हैं कि वो फिलफौर इस पर जियो जारी करते हुए NPR पर जो 1 अप्रैल से अमलावरी को रोक लगाने के इक़दाम करे। NPR, NRC పై ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెట్టినటువంటి ఈ తీర్మానం పైన అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీకు ముందుగా ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. అట్లాగే ఈ NPR వలన ఉత్పన్నమవుతున్నటువంటి అనేక సమస్యల గురించి ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా సభ దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. సభ ద్వారా రాష్ట్ర ప్రజలకి దేశానికి కూడా దృష్టి తీసుకొచ్చారు. తదుపరి వచ్చేటువంటి NRC వలన వచ్చేటువంటి ప్రమాదం గురించి కూడా చెప్పారు అధ్యక్ష. रियासती असम्बली में आज बहुत कुछ देखने को मिला। 2014 में जब तेलंगाना की तश्कील के बाद पहली असम्बली तश्कील पाई थी, उस वक्त बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने जो रियासती असम्बली की कारगुजारी का जायज़ा लेती है और उसको रन करती है, BSC ने तय किया था कि मुतफ़िक़ा तौर पर असम्बली के वेल के दौरान असम्बली जो वेल में कोई रुकन आ जाए तो वो खुद ब खुद उस दिन के लिए मुअत्तल हो जाएगा। इस सिलसिले में 2014 से इस कानून पर अमल हो रहा था और 4 दिन कबल ही कांग्रेस के एक राजगोपाल कोमटरेड्डी ने वेल में जाने की कोशिश करते ही स्पीकर ने कांग्रेस के पूरे 5 अरकान असम्बली को उस दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। मगर ताज्जुब की बात यह है, कल बीजेपी के वाहिद रुकन असम्बली राजा सिंह जो ऐवान में CAA, NPR और NRC पर मुबाहिस में हिस्सा लेने के लिए उठे और उन्होंने जज्बात में आते हुए करारदाती कापी को चाक फाड़ा और जो है ऐवान में बिखेर दिया। उसके बाद वो मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए वेल और स्पीकर के पोडियम के पास गए और काफ़ी देर तक स्पीकर से बहस और मुबाहिस करते रहे। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जो कानून बनाया गया था, BSC ने डिसाइड किया था, जिस पर अमल हो रहा था गुज़िश्ता तकरीबन 10 साल से, कल आज असम्बली में स्पीकर ने राजेश सिंह को मुअत्तल नहीं किया। ताज्जुब की बात है, चूँकि खुद ब खुद जैसे वेल में जाते हैं तो वो मुअत्तल होते हैं, लेकिन हुकूमत ने उसको मुअत्तल नहीं किया। वज़ीर आला उसके फौरी बाद उठे और स्पीकर से ख्वाहिश की कि वो इस करारदाद को मंजूरी के लिए ऐवान में पेश करें और स्पीकर ने ऐलान करते हुए करारदाद को मंजूर कर दिया। हालांकि राजेश सिंह काफ़ी देर तक ऐवान को मुलतवी करने के बाद भी वहीं पर अपनी जगह पर बैठे रहे और एहतियात करते रहे। राजेंद्र साहब, कल असम्बली के अंदर जो है और काउंसिल में एक रेजोल्यूशन स्टेट गवर्नमेंट पेश की और वो पास हो गया। ये रेजोल्यूशन का लीगली स्टेटस क्या है? देखिए, लीगली तो इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जब पार्लियामेंट में राज्यसभा में पास हो चुका है, जिसको राष्ट्रपति जी का भी सहयोग मिल चुका है, उनके हस्ताक्षर उनकी साइन भी हो चुकी है, ये सिर्फ तमाशा हुआ है तेलंगाना असेंबली में। यानी एक पार्टी को खुश करना है और एक पार्टी के इशारे में नाचना है, यही मुख्यमंत्री जी का काम है। बाकी का आप रेजुलेशन लेकर आ लो, आप कुछ भी कर लो, आपको भेजना तो केंद्र को है। और ऑलरेडी केंद्र नागरिक संशोधन बिल के ऊपर ऑलरेडी वो लोग पास कर दिए, एक्ट बन गया, कानून बन गया। उसके ऊपर जो मुख्यमंत्री जी जो कल जो तमाशा करे ना, वो सिर्फ तमाशे के तक है, बाकी का कुछ नहीं है ये।
अच्छा राजन साहब, ये बोलिए कि MIM जो है इसके पहले स्टे देने का और कांग्रेस जियो का डिमांड करे और वो असेंबली में वो पेश नहीं हुआ, खाली जो है रेजोल्यूशन पास हुआ है, तो बिल्कुल बिल्कुल वो एक जियो ये लोग नहीं निकाल सकते, क्योंकि मुख्यमंत्री KCR इतने शार्प है और इतने नॉलेज पर्सन व्यक्ति है कि उनको पता है उनको सिर्फ MIM को खुश करना है और माइनॉरिटी का वोट लेना है, क्योंकि अब नेक्स्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन है, फिर से माइनॉरिटी को धोखा देना है। तो ये सिर्फ तमाशा हुआ असेंबली में, बाकी का मैं कह रहा हूँ ना, ये कुछ नहीं कर सकते सिवाय कुछ पेपर वेस्ट होंगे, बाकी का रियलिटी में कुछ नहीं होगा इसके बदले। और मैं जैसे विधानसभा में भी मैंने कहा है कि ये लोग कई वर्षों से मुसलमानों के ऊपर राजनीति खेलते आ रहे हैं और आज भी ये लोग खेल रहे। दुर्भाग्य की बात है, आज के मुसलमान को जागने की आवश्यकता है। अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में, राज्यसभा में क्लियर एक बात कही है कि ये जो नागरिक संशोधन जो बिल है, जो CAA, इससे किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये लाया गया जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो बांग्लादेश में जो सताए हुए लोग हैं, जो भारत में आकर जो शरणार्थी जो बन के रह रहे, उनके लिए एक्ट लाया गया और उनको नागरिकता हम देंगे। ये जो एक्ट है, ये जो कानून है, नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं है। नहीं, ये तो CA है, लेकिन NPR के ऊपर जो डाउट्स है पूरे। जी, अभी देखिए जो NPR की जो बात हो रही है, मुख्यमंत्री जी भी इसके ऊपर पब्लिक को क्लियरली जवाब नहीं दे सके। वो जानते हैं कि ये NPR जो है वो आज का नहीं है, 1951 में जब स्थापित हुए सो है ये, और वो समय पर यानी हर 10 साल को एक बार, 10 साल में एक बार जो केंद्र में जो सरकार रहती है वो NPR के तहत एक पॉपुलेशन काउंटिंग का कार्य करती है कि कौन सी समाज के लोग हैं, कितने लोग मरे हैं, कितने लोग पैदा हुए हैं, ये सिर्फ पूछा जाता है। और गृह मंत्री जी ने 3 दिन पहले भी कहा कि जो भी ऑफिसर आपके मकान आएगा, आपसे जो पूछेगा, आप जो सवाल जो जवाब देंगे सिर्फ वही लिख कर जाएगा, आप जो डॉक्यूमेंट्स देंगे सिर्फ वही वो लेके जाएगा। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं भी देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ आपका नाम, अता पता, कॉन्टैक्ट नंबर लिख के चले जाएगा। राजन साहब, आखिरी सवाल आपसे ये है कि 2014 में जब तेलंगाना बनने वाली पहली असेंबली हुई थी, एक BSc में रेजोल्यूशन पास हुआ था कि जो कि वेल में असेंबली के सेंटर में जो आ जाएगा वो खुद ब खुद जो है सस्पेंड हो जाएगा। तो कल आप इस बिल के अगेंस्ट में जाते हुए वेल में गए और जाके स्पीकर से बहस भी किए, मगर आपको सस्पेंड नहीं करते हुए पास किया, इसका रीज़न क्या हो सकता है? देखिए, तेलंगाना असेंबली में कल जिस प्रकार से तमाशा हुआ, पहले तो एक्ट के ऊपर चर्चा हुई, सभी लोगों ने अपना अपना पक्ष रखा और उसके बाद में फिर क्लैरिफिकेशन उनका काम रहता देना। बिना क्लैरिफिकेशन के, बिना मुझे बात करे, मेरे से यानी मुझे समय भी नहीं दिया गया, मेरा माइक बंद करके और बिना उस पर क्लैरिफिकेशन के बिल पास करके लोग भाग गए। यानी इनके पास जवाब नहीं है ना हमारे सवालों का। हमारे हर वो सवाल का अगर ये लोग जवाब देते तो आज ये लोग सक्सेसफुल रहते, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि हम जो सत्य है हमने वो असेंबली में रखा, हमने मीडिया में रखा, बिना उसका जवाब दिए। चलो, आप में अगर दम होता तो मुझे सस्पेंड करना था, हम तो आपके कोडियम तक आए, हमने स्पीकर से हम फाइट किए कि आप हमें दो, माइक दो, हमारी आवाज़ को क्यों दबाया जाता है। लेकिन ना स्पीकर साहब ने हमें जवाब दिया, ना ही मुख्यमंत्री जवाब दिया, पास करे, निकल गए। डर सस्पेंड नहीं करने का रीज़न क्या है? हाँ, वो तो आप मुख्यमंत्री जी के ऑफिस को जाना है, पूछना है, और TRS के नेताओं को पूछना है कि क्यों राजा सिंह को सस्पेंड नहीं किया। इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूँ। थैंक यू। रियासती कानून साज काउंसिल में तेलंगाना राष्ट्र समिति के रुकन वो गवर्नमेंट विप MS प्रभाकर राव ने अपने मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए हुकूमत की तवज्जो दिलाई कि आसाम में किस तरह न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि गैर मुस्लिमों को, जिसमें दलित ब्राह्मण भी हैं, हिरासती मरकज़ मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि उसमें सनाउल्लाह है जो कारगिल की लड़ाई में वहाँ पर उन्होंने बॉर्डर पर अपनी खिदमत अंजाम दी, उन्हें भी जो है गैर मुल्की करार दे दिया गया है। और साबिक़ सदर जमहूरिया हिंद फ़खरुद्दीन अहमद के ख़ानदान के अफराद को भी आसाम में गैर मुल्की करार देते हुए उन्हें भी डिटेंशन सेंटर भेजा गया है। MS प्रभाकर राव सर, अरे हीरो अच्छा बात कर लेते, हमारे को गालियां देते।
साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया सीएए पर एनपीआर और एनआरसी के बारे में जो रेजोल्यूशन लिया जा रहा उसके तायद तो मैं कर रहा हूँ। काफ़ी लोग काफ़ी अच्छी तकरीर किए हैं। आज हमारे देश में कई समस्या है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही, महंगाई बढ़ती जा रही, और जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो तो बिल्कुल कुप्पा हो गया। जब बीजेपी सरकार आया तो लोगों में एक बड़ी उम्मीद थी। लोग सोच रहे थे कि बीजेपी सरकार आने के बाद एक मजबूत भारत देश बनेगा और देश में जितने भी लोग हैं वो सुख और शांति से रहेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 4-5 साल में हमने देखा कि ना शांति थी, ना अमन थी, ना मजबूत भारत बना। कई फैसले लिए थे, नोटबंदी, उसे हम सोचे कि देश को कुछ फायदा होता, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आपने ये भी फैसला लिया जीएसटी का, हम सोचा कि देश को फायदा होगा, तो उसको कोई फायदा नहीं हुआ। आज जो है नया मुश्किलात हमारे बीच में ऊपर ला लिए। आज पूरा देश परेशान है। आज जो है ये सीएए, एनआरसी, एनपीआर का जो लागू करने चाह रहे हैं उसके ताल्लुक से आज पूरा देश में परेशान है। आपने देखा होगा, आपने सोचा होगा, आपने सुना होगा कि 20 जून 2019 में हमारे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री कोविंद जी ने एक जॉइंट सेशन में अपना तकरीर कर रहे थे और उन्होंने इसमें किया कि उन्होंने, उनके अल्फाज से मैं बताना चाह रहा हूं कि मेरे सरकार ने ये तय किया है कि एनआरसी का अमल होगा, लागू होगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो बड़े मुकाम में रहते हैं वो कह रहे हैं कि उनके जॉइंट सेशन जो पार्लियामेंट में जो होता, जैसे अपने परसों हुआ था, अपने पास जो गवर्नर करते थे उस तरीके से वो किए। उसी तरीके से होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 10 दिसंबर को एक स्टेटमेंट देते हैं पार्लियामेंट में, हम किसी सूरत से एनआरसी का हम लागू करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो इस बार में हम इस बारे में रहेंगे और काम करेंगे। तो एनपीआर का आप देखा कि 210 में भी एनपीआर हुआ तो कोई गड़बड़ नहीं था, कोई परेशान नहीं थे, लोग अमन शांति से थे, चाहे हो हिंदू हो मुसलमान हो, पूरे मिलके मजबूत भारत देश को बनाने के लिए जो है हम लोग सब साथ दिए। फिर उसके बाद 215 में जब बीजेपी सरकार थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब और उनकी सरकार थी, जब भी एनपीआर हुआ। जमात इस्लामी हिंद जिसने रियासत में, न सिर्फ रियासत बल्कि पूरे मुल्क में एनआरसी के ख़िलाफ़ एक मुहिम छेड़ी है और यहाँ पर भी हरकयाती तौर पर जमात के पूरे अरकान हिस्सा ले रहे हैं। उसके अमीर हामिद मोहम्मद खान ने असम्बली में ऐवान असम्बली में क़रारदाद की मंजूरी का खैर मकदम करते हुए कहा कि ऐवान में सिर्फ एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है, जबकि दीगर कार्रवाई जैसे जीओ जारी करना, स्टिल ना, ये हुकूमत की अलग कारकर्दगी है, हुकूमत को अलग से करना पड़ता है। ये तमाम चीज़ें ऐवान में ज़ाहिर नहीं की जा सकती और हमें उम्मीद है कि वज़ीर आला यकम अप्रैल से शुरू होने वाले एनपीआर पर स्टे लगाते हुए रियासती अवाम को सुकून और चैन से रहने का मौका फराहम करेंगे। हामिद मोहम्मद खान साहब, कल असम्बली में जो है और कानून साज काउंसिल में जो है तेलंगाना में बिल जो रेजोल्यूशन गवर्नमेंट पेश की पास हुआ, तो आप इसको किस एंगल में दें, क्योंकि आप लोग जो है इसके मुल्क भर में और यहाँ पर स्टेट में आपकी क़यादत में जमात इस्लामी जो है शहरियत क़ानून के ख़िलाफ़ मुहिम चला रही है और काफ़ी बड़ा एहतियात चल रहे हैं, तो आप इसको किस एंगल में, या ये जो क़रारदाद मज़ीद मुसलमानों की कामयाबी है, या इसको किस एंगल में आप देखेंगे? ये क़रारदाद जो कल मंजूर हुई सिर्फ़ मुसलमानों की कामयाबी नहीं बल्कि इंडिया के सोशल फैब्रिक की कामयाबी है। क़रारदाद के अंदर बहुत तफसील के साथ गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना क्यों और किस लिए वो उसके ख़िलाफ़ क़रारदाद मंजूर करना चाहती है, उसके वजूहात को बहुत तफसील के साथ में बयान किया गया है। और जो कल चीफ़ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब की जो तकरीर
वहाँ असेंबली में हुई और ख़ास तौर पर उन्होंने दिल्ली में जो कुछ वाक़यात रूनुमा हुए, जेनोसाइड हुआ, उसके असबाब को उन्होंने जिस तरह बयान किया, वो यहाँ की सेक्युलर जो तहज़ीब है और यहाँ का भारत अगर रहना है तो ज़ाहिर है कि वो सेक्युलर रहेगा, तो वो उसके सेफ गार्ड के तौर पर मैं समझता हूँ कि एक मुस्तहसन किस्म का इक़दाम है। और इसमें बहुत सी बातें ख़ास तौर पर CAA के ख़िलाफ़ और NPR के जो ख़दशात हैं, और उन्होंने क़रारदाद के आखिर में CAA और NPR के एक्सरसाइज से यहाँ के अवाम को सेफ गार्ड के तौर पर उन्हें महफूज रखने की बात भी क़रारदाद के अंदर की गई है। अलबत्ता क़रारदाद से कोई चीज़ रुकती नहीं। ये क़रारदाद तो मरकज़ी हुकूमत के लिए है, मरकज़ी हुकूमत के आँख खोलने के लिए है, उनको नींद से जगाने के लिए है। तो क़रारदाद पर अमल आवरी के लिए बेहद ज़रूरी है कि रियासती हुकूमत एक GO जारी करे, गवर्नमेंट ऑर्डर निकाले, क्योंकि NPR का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस इस वक्त शुरू हो चुका है। ट्रेनर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम तकरीबन ख़त्म हो चुका है। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि NPR पर स्टे देने के लिए एक GO निकाला जाए और उसके अंदर क्लियरिटी हो और उसमें इस बात का ज़िक्र हो कि अप्रैल से जो कुछ भी सर्वे होगा वो सेंसस के लिए होगा, और वो भी 1948 सेंसस एक्ट के तहत होगा। तो हम अगर सेंसस ही करवाते हैं और बहुत क्लियरिटी के साथ, तो हम सेंसस करवाने में मदद देंगे। हमारे नौजवान गलियों कूचों में एनुमरेटर्स का साथ देंगे, उनको घरों तक पहुंचाएंगे और फिर उनका ताउन करेंगे, और 100% कामयाब सेंसस के अंदर हमारा ताउन रहेगा। हमारा साहब, सेंसस ठीक है, आप बोल रहे हैं, अगर सेंसस का डाटा लेकर अगर उसको जो उसके लिए हुकूमत यूटिलाइज करना चाहे तो? नहीं, सेंसस का डाटा अलग चीज़ है। आप सेंसस के जो सवालात आप देखेंगे वो पूरे गुर्बत को, इकोनॉमिक कंडीशंस को मालूम करने के लिए, आपका घर कैसा है, आपके घर में फ़र्श किस नौइयत का है, क्या पक्का फ़र्श है या कच्चा है, आपकी घर की छत कैसी है, आपके घर में बाथरूम है या नहीं है, आपके घर में टीवी है या नहीं है, आपके पास मोपेड है या जो है कार है, आपके पास सेल फ़ोन है या नहीं है, आपके घर में कंप्यूटर है या नहीं है, इंटरनेट एक्सेस है नहीं है। ज़ाहिर है इसका कोई ताल्लुक़ भी NPR से और NPR के डाटा के लिए हरगिज़ माविन नहीं हो सकता। NPR के डाटा के लिए जो चीज़ है, असल NPR 2010 में भी करवाया गया था, लेकिन 2010 में जो NPR करवाया गया था उसका ताल्लुक़ सेंसस ही की तरह वो रेसिडेंसी को, सुकूनत को मालूम करने के लिए था। लेकिन अब जो NPR करवाने की ये NDA लेड BJP गवर्नमेंट कोशिश कर रही है वो शहरियत को मालूम करने के लिए है। इसीलिए वो बर्थ सर्टिफिकेट पूछ रही है, वो आबा व अजदाद और ख़ास तौर पर वालिदैन की पैदाइश का मुकाम और उनका बर्थ सर्टिफिकेट पूछ रही है। तो ये दरअसल शहरियत को मालूम करने के लिए है। तो दोनों के अंदर बड़ा फ़र्क है। इसलिए हरगिज़, और ये जो डाटा है सेंसस का, ये तो पब्लिश होता है, इसी की बुनियाद पर रिजर्वेशन मिलते हैं, इसी की बुनियाद पर गवर्नमेंट के स्कीम्स बनते हैं, इसी की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ किस्म के स्कीमात वजूद में आते हैं, एवॉल्व किए जाते हैं। तो ये तो एक कॉमन चीज़ है और मामूल की चीज़ है, और ये ज़रूर जो है होना चाहिए। ये मुल्क के लिए और मुल्क की मईशत के लिए, यहाँ के सोशल जो फैब्रिक है उसको मालूम करने के लिए, कितनी ज़ातें हैं, कौन रहते हैं, क्या ज़ुबान बात करते हैं, ये मुख्तलिफ़ स्कीम्स को रूबा अमल लाने के लिए भी बेहद ज़रूरी है डाटा।
हामिद साहब, ये बाज़ अपोजिशन ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि कल जो असम्बली में क़रारदाद मंजूर हुई है वो सिर्फ कागज़ का टुकड़ा है, उससे ज़्यादा हैसियत नहीं है। अगर हुकूमत से संजीदा होती KCR तो उसके लिए इसको स्टे करने की बात और जियो जारी करने की बात फ्लोर पे की जाती, वो ना करना ये हुकूमत की जो है गैर संजीदगी का सबूत है, बल्कि इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। जियो तो फ्लोर में नहीं होता, कभी आज तक नहीं हुआ, और जियो तो रोज़ाना जारी होते हैं, रोज़ाना 2500 जियो जारी होते हैं, हुकूमत जारी करते रहती है। तो फ्लोर में कभी जियो जारी नहीं होता। फ्लोर में जो बातें होती हैं वो उसूली बातें होती हैं, फ़िक्री बातें होती हैं, और दलाइल के साथ में क़रारदाद मंजूर होती है। क़रारदाद एक अलग चीज़ है, जियो एक अलग चीज़ है। इस क़रारदाद की बुनियाद पर जियो निकाला जा सकता है। जियो निकालने के लिए इस वक्त किसी किस्म की रुकावट नहीं है, क्योंकि क़रारदाद के आखिर में कहा गया है कि पीपल ऑफ तेलंगाना को NPR और NRC और CAA के सेफ गार्ड्स फराहम करे गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, ये अपील उसके अंदर की गई है। तो इस अपील की बुनियाद पर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना जियो जारी करे कि फौरी हम NPR पर रोक लगाते हैं, स्टे देते हैं। क्या अब ये रेजोल्यूशन पास हो गया है तो क्या दोबारा फिर जियो के लिए हुकूमत से KCR से मुलाकात करते नुमाइंदगी करने का कोई मंसूबा है? ये तो कल ही उन्होंने ऐलान किया कि हमने कहा था कि साहब राजस्थान की गवर्नमेंट ने, केरला, दिल्ली और वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने जिस तरह जियो निकाला है आप भी निकालिए। तो इमीडिएट उनका रिएक्शन आया और कल ही मीडिया के अंदर आया कि जो वेस्ट बंगाल, दिल्ली और केरला से बढ़कर हम यहाँ पर काम करेंगे लोगों के सेफ गार्ड के लिए। शुक्रिया अहमद सर। जमीयत उलमा हिंद तेलंगाना के सदर हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद ने रियासती असम्बली के दोनों ऐवानों में क़रारदाद की मंजूरी का खैर मकदम तो किया है, लेकिन उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि वज़ीर आला इस पर अमली इक़दाम के लिए फिलफौर अहकाम जारी करेंगे और जियो जारी करना बहुत ज़रूरी है चूँकि वक्त बहुत कम है। तेलंगाना कानून साज असम्बली और कौंसिल में कल रियासती हुकूमत ने CAA, NPR और NRC के ख़िलाफ़ क़रारदाद पेश किया। उस क़रारदाद को सिर्फ एक वोट के मुखालिफत के बाद मंजूर कर लिया गया। आइए इस क़रारदाद का CAA पर, NPR पर और NRC पर क्या इम्पैक्ट रहा है, इससे हम बात करते हैं। हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साहब जो जमीयत उलमा हिंद तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के सदर हैं और जमीयत उलमा इस सिलसिले में मुल्क भर में मुहिम चला रही है और रियासत आंध्र प्रदेश तेलंगाना में हाफिज़ शब्बीर अहमद साहब की क़यादत में मुहिम जारी है। हाफिज़ साहब, कल असम्बली में जो है KCR साहब वज़ीर आला जो है क़रारदाद पेश किए और उस क़रारदाद की जो है मंजलिस और कांग्रेस ने सपोर्ट किया सिवाय BJP के। तो ये क़रारदाद की कामयाबी से इसके पर CAA पर, NRC पर, NPR पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और आप उस क्या किस एंगल में देखते हैं आप? देखिए, जो कल असम्बली में NRC, CAA और NPR के ताल्लुक़ से जो बिल पेश किया और तकरीबन तमाम अपोजिशन जमातों ने भी उसकी तायीद की सिवाय एक BJP की जो एक ही नुमाइंदा है उनका, तो हम उसका तो खैर मुक़द्दम करते हैं। कम से कम उन्होंने एक चीज़ तो कदम बढ़ाया आगे। तो दूसरी बात यह है, हम हमारे CM से ये जो है ना एक बात अर्ज़ करना चाहते हैं, अगर कल के दिन हमारे घर पर 1 अप्रैल के बाद NPR के लिए कोई आ गए तो हम क्या करें? उसके लिए आपने जना रास्ता खुला छोड़ दिया। तो हम ये चाहते हैं कि भाई उसके ताल्लुक़ से कुछ हमारे लिए जो ना तयक़ुन दीजिए। वो लोग आएंगे तो क्या जवाब दें हम? क्या हम ये कहेंगे भाई हमारी गवर्नमेंट जो ना वो कर दी है, लिहाजा हम नहीं करेंगे, ये जवाब दें, या हम तो क्या करना चाहिए? इसको एक चीज़ उन्होंने जो है ना खुल के बयान देना चाहिए था और उम्मीद है कि जो ना 1 अप्रैल से पहले बयान देगी। और दूसरी अहम बात है कि केरला की हुकूमत ने जो स्टे किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत KCR साहब ने बोला भी था कि हम भी जाएंगे कोर्ट के अंदर। जब हमने मिले थे उनसे, जब हमारे असद साहब के साथ जाके जब मिले थे, पूरे उलमा मशाइखीन मिले थे, उन्होंने कहा कि हम इसको कोर्ट में भी ले जाने की सोच रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि उसको कोर्ट में ले जाइए, सुप्रीम कोर्ट में ले जाइए। ले जाने के बाद तो ये है कि ये कदम आपने जो आगे बढ़ाया उसको तकमील कर दीजिए, तो कम से कम जो तेलंगाना के मुसलमान जो है ना इत्मीनान से रहे,
कि भाई हम पे NRP आने वाला नहीं है, ये वही चीज़ आने वाला है 2010 का सेंसेक्स जो 2010 से हमसे पूछा गया था, उसी नहज पे अगर वो ला रहे हैं तो आप ऐलान करिए कि हम इसी नहज पे हम लाना चाहते हैं। हाफिज साहब, 4 दिन पहले कांग्रेस के प्रेसिडेंट MP हमारे कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी साहब जो है केरला की रेजोल्यूशन कॉपी और ST की कॉपी के साथ CM को लेटर लिखे थे और भट्टी विक्रमार्का मुसलसल बोलते गवर्नमेंट इस सिलसिले में जियो जारी करे, और अकबर साहब जो है कल हाउस के अंदर बाज़ाब्ता बोलेंगे हुकूमत इसके ऊपर स्टे करे और ये इस मुतालबा, लेकिन इसको नज़रअंदाज किया गया, इसका रीज़न क्या हो सकता है? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपने ये कदम आगे बढ़ाया। असल कदम ये था कि इन लोगों के जवाब देते आप, चाहे वो कांग्रेस हो या आपके जो हलीफ जमात हैं, आपके साथी जमात हैं, उन्होंने जो आवाज़ उठा रही थी, मुसलसल 3 दिन से आवाज़ उठा रहे थे कि जवाब दो, तुम जवाब दो, तो आप उनका कोई जवाब तो देते। आप ये कह दिए कि जो है ना, ये बात ये कह दिए कि आइंदा की जो चीज़ें हैं हम अपने हलीफ जमात से मिल के बात करके फैसला करेंगे, ये कहा उन्होंने ये बात। तो हम ये चाहते हैं कि भाई वो खुल के करें, कम से कम जो है ना, जो इस वक्त जो तलवार लटकी हुई है खाली मुसलमान पे नहीं है, ये मुसलमानों पे नहीं है बल्कि दलितों के भी है और गरीब लोगों के पास भी है और जो जंगलों में रहते हैं उनका मसला भी है। ये हमारा एक मसला जो बना रहे हैं मुसलमानों का असल मसला सब तीनों चारों है, और धीरे धीरे जो ना कमने वो भी आने वाली है, इसके अंदर ईसाई भी आने वाले हैं, सब आने वाले हैं। तो ये हम ये चाहते हैं कि मसले को खुल के कर दें आप, और खुल के करके हुकूमत हिंद को लिखें कि भाई हम ये चीज़ें यहाँ नहीं लाएंगे, हम ये चीज़ें हम नहीं करेंगे हमारे हुकूमत में, तो फिर हमको इत्मीनान होगा। हम इत्मीनान से जो है वो चीज़ को सोचेंगे। जो एहतजाज हम करते आ रहे हैं, अभी जो कर रहे हैं, अभी अब ये लोग बाज़ लोग ये मुझसे सवालात कह रहे हैं कि भाई CM साहब ने ऐलान कर दिया, एहतजाज क्या बंद क्यों नहीं करते? जैसा निज़ामाबाद में ख़वातीन हमारे बैठे हुए माए बहनें और जगह भी हैं, तो आप लोग ख़त्म नहीं करते। तो मैंने उन लोगों से ये कहा कि भाई आपका मसला नहीं है, आप तो कर दिए, आपका खैर मुकद्दम है। हमारा असल झगड़ा है सेंटर से, सेंटर पास करे वो बिल, हमारा झगड़ा उससे है, आपसे ज़्यादा आपसे नहीं है। आप तो कर दिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन असल मसला हमारा सेंटर से। आप कैसा बोल रहे हैं कि मसला ख़त्म हो गया? या तो मसला ख़त्म हो तो तयक़ुन दीजिए आप, यहाँ नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा, यहाँ पर इला तयक़ुन दीजिए। आप बोलने से क्या हो जाएगा या नहीं होगा, वो भी मरकज़ को लिख के पूछ लीजिए आप। और एक बात है, रियासत का हद के, मैं मरकज़ से भी अमित शाह जो साहब ने जो ना 2-3 दिन पहले पार्लियामेंट में राज्यसभा में ये कहा कि भाई जो है मैं जो है जिसको जो है आपके पास आएंगे लोग, तो आप जो है ना पूरे खाना पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, जो है वो लिखा दीजिए, कागज़ देने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब गुलाम नबी आज़ाद ने और लोगों ने, कपिल सिब्बल साहब वगैरह ने पूछा कि भाई डी लगाने के ताल्लुक़ से, तो आपने ये कह दिया कि डी लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। 1 से 3 वक्त करा कि डी लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। हम ये सवालात कर दें, हम उसी जो है ना अमित शाह साहब वज़ीर दाखिला से पूछना चाहते हैं, आप जब इतना तयक़ुन हमें दे रहे हैं तो आप तहरीरी तौर पर क्यों नहीं देते? आप जियो क्यों नहीं निकालते हैं? और उसके साथ ये भी लिखिए जी NRC भी नहीं रहेगा, कम से कम मुतमईन तो हो जाए लोग, कम से कम मुतमईन तो हो जाए। आप एक मरतबा कहते हैं कि NPR के बाद NRC होगा, आपने कई तकरीरें की, आप बंगाल में किया, आसाम में किया, हर जगह किया। उसके बाद आप ये कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम इसका भी वेलकम कर रहे हैं, आप ये बोले हैं, लेकिन तहरीरी तौर पे दें तो फिर हम जो करना है हमको एहतजाज बंद करेंगे। कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप तहरीरी तौर पर ये दें। और फिर एक बात आप ये भी कह रहे हैं आप कि भाई मुसलमान भाइयों और मुसलमान बहनों से इल्तिजा है, वो लोग आपके लिए नहीं है कानून। जब आपने मुसलमानों को भाई बनाया और जो है ना हमारे माँ बहनों को बहन बनाया, तो भाई का रोल अदा करिए आप। जब मांग रहे हैं लोग तो जो भाई का रोल तो अदा करिए। आप ये कहिए कि भाई तहरीरी तौर पे हम दे रहे हैं, चाहे वो छोटा भाई बने या बड़ा भाई बने। शबीर अहमद साहब, अब जो कल असेंबली में करारदाद के मंजूर होने, क्या जो आप चाह रहे थे, जो डिमांड था वो तो फुलफिल नहीं, क्या आप लोग फिर दोबारा चीफ मिनिस्टर से मिलते हुए इस पर बात करने वाले, नुमाइंदगी करने वाले? देखिए, हम तो बात करेंगे, अगर उन्हें देंगे तो हम बात करके पूछेंगे भाई ये भी तयक़ुन दे दीजिए आप। ये कदम उठाया आगे, बहुत बड़ी बात है, आप हम खैर मुकद्दम करते हैं, लेकिन ये चीज़ में कोई सवाल, यही फिर सवाल उभरते हैं आपने, हमारे घर पर 1 अप्रैल के बाद लोग आना शुरू हो जाएंगे, हम क्या जवाब दें? और फिर सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ मैं मुसलमानों का कह रहा हूँ कि 25 अप्रैल से रमज़ान मुबारक शुरू हो रहा हमारा, 25 मई तक है। हम अपनी इबादतों में मसरूफ़ रहेंगे, हमारे रोज़े रहेंगे। आप उस वक्त लोग आके तंग करेंगे हमारे को, कागजात बताओ, वो बताओ, तो हम क्या करें?
आप ये तयक़ुन दीजिए भाई आपके पास नहीं होगा, आपकी रियासत में नहीं होगा, बोल दीजिए आप, या 2 महीने जो है ना आप 2010 के नहज पे करेंगे, ये आप बोल दीजिए ना भाई, क्यों खाली ये तो कर दिया आपने, ये भी बोलिए, आगे बढ़ के बोलिए, और फिर सुप्रीम कोर्ट में ले जाना ज़रूरी है स्टे के लिए, सुप्रीम कोर्ट में ले जाइए जैसा किरलानी लेके गया, और वहाँ तो ऐलान भी करे कि वो लोग नहीं बताएंगे ना उलमा लिखाने के बाद, आप भी करिए जब हम मुतमईन हो सकते। मतलब ये है कि मुसलमान मुतमईन हो सकते हैं, रियासती जमीयत उलमा मुतमईन हो सकती कि आपने जो वायदा किया था उसकी पूरी तकमील किया, खाली ऐलान कर दिया, बेशक अच्छा किया आपने, लेकिन इसके साथ ये भी कर दीजिए, अच्छा रहेगा हमारे लिए। शुक्रिया हाफिज साहब। अदा करता हूँ। स्पीकर साहब, मुझे इस सब्जेक्ट पे बात करते हुए शर्म आ रही है और अफसोस भी हो रहा है। एक जो हमारा हिंदुस्तान है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, जो कहता है कि गवर्नमेंट फॉर द पीपुल बाय द पीपल,